Welcome to the class on Nyaya philosophy. So, the propounder of Nyaya philosophy is Akshaypad Gautam. His time period is around 600 BC. So, founded by Gautama, also known as Akshaypad. This philosophy, Nyaya, or as we call Nayayikas, Nayayikas in plural terms, is primarily concerned with conditions of correct knowledge and the means of receiving this correct knowledge. And the knowledge that they are trying to arrive at is not for the sake of meeting some intellectual curiosity. No, the objective of attaining knowledge is the process of obtaining valid knowledge of things one could secure release from the material bondage. Okay, so as all Indian philosophies have said, that avidya is the cause of bondage, avidya is suffering, whereas vidya is liberation, vidya is moksha. So, why knowledge? Why such an elaborate system of knowledge? To attain the correct knowledge. Correct knowledge can only be attained by correct conditions of knowledge, the means, correct means of receiving this knowledge. And once you have the knowledge, you are released from material bondages because then you know what is unreal and what is real. You will have this vivek, discriminative knowledge, vivek gyan of what is real and what is unreal. That's why so much of elaboration on knowledge by Nyayika philosophy. Now see, let's see their epistemology, which is very broad based. In epistemological terms, they have divided the reality into 16 padarth. Padarth are those which are real, knowable, and nameable. Real, knowable, and nameable. In that, they have talked about praman, प्रमेय, समस्या, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, बाध्य, जलप, विदंड, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थन. Now you don't have to remember all of these, just for the introduction part. So by this you can say, see how elaborate logical inquiry they have done. This is the most elaborate logical inquiry by any school. They have dealt on the sources of knowledge, they have dealt on the objects of knowledge, the doubts when that arises in this state of uncertainty, and what is the aim of knowledge. Knowledge is not for the sake of it. Knowledge has some aim because you want to attain certain things. You want to liberate yourself. Then there is examples, apt examples need to be there. There has to be apt doctrine. Then you, if you make inference, then have to be constituents of inference. They will talk about panchavyav, five members of syllogism. Then one has to give hypothetical argument, tark. There has to come, we have to come to some conclusion. There has to be discussion, wrangling. Irrational argument must be found out. Specious reasoning, the hetvabhas must be recognized. The unfair reply, the generality based on false analogy, and the grounds of defeat. They have dealt on all these aspects. That's why I say very elaborate logical inquiry by any school. Let us see them one by one very quickly. Praman is the source of knowledge. Prama is the valid knowledge. Prama is the cognition, and the Praman is the source of that cognition, the valid knowledge. Knowledge can be of two type, through anubhav and through smriti, that is memory, through your own experience by five senses, not only five but six senses, five external and one internal, mana, mana pratyaksh, and also
Smriti, they also believe that memory is knowledge. And you will see that Mimamsakas will reject this. They will not accept memory as knowledge because for Mimamsaka, memory is not a new thing. Novelty is a special feature of knowledge for Mimamsakas. But this is not the case with Nayas. Both categories can be divided into valid and invalid knowledge. Valid experiential knowledge is called प्रमा and invalid knowledge भी हो जाती है कई बार हमको, that is अप्रमा. इनवैलिड नॉलेज भी हो जाती है रोप और दिखता है स्नेक, इनवैलिड नॉलेज हो गई और स्नेक को हम रियल मान लेते हैं. देन आफ्टर हैविंग डेल्ट विद द sources of knowledge, they talk about the objects of knowledge, what can be known. अभी देखना, जब ये लोग बॉन्डेज लिबरेशन की बात करेंगे, दे विल टेल अस कि इन सब रियलिटीज़ की हमको नॉलेज होनी चाहिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की, तभी हमको लिबरेशन मिल सकता है. क्या क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज न्याय फिलोसफी के अंदर? आत्मा इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, द इंडिविजुअल कॉन्शियस यूनिट. शरीर इज़ द यूनिट ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. इंद्रिय है नॉलेज का ऑब्जेक्ट. अर्थ है, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस. सेंसेस खुद अपने आप में और सेंसेस जिस ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करते हैं वो. देन बुद्धि, मन, द एक्टिविटी, द मेंटल डिफेक्ट्स, द लाइफ एंड डेथ पार्ट, रिजल्ट्स ऑफ पेन एंड प्लेजर, सफरिंग एंड परमानेंट रिलीज फ्रॉम सफरिंग. इन 12 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स की हमको नॉलेज होनी चाहिए फॉर लिबरेशन. न्यायिकास विल से दिस. इन 12 के 12 ऑब्जेक्ट्स की हमको नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज. ये आत्मा क्या है, मटेरियल बॉडी का रियल स्वरूप क्या है, इंद्रिय कैसे काम करती हैं, मन क्या होता है, लाइफ एंड डेथ, ऑल ऑफ दैट. इनकी करेक्ट नॉलेज होना आवश्यकता है फॉर लिबरेशन. ओके. देन इन दिस दे ऑल्सो टॉक अबाउट लव. यहाँ पे उनने 16 पदार्थ की बात करी थी. ऑल्दो हमारे लिए ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, प्रमाण और प्रमेय. बाकी सब आप, और इसके बाद हमारा जो हेत्वाभास वाला पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अवयव है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है. ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 1 2 हमारा अवयव वाला पार्ट जो हम इन्फ्रेंस में बात करेंगे. उसके बाद हेत्वाभास इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी सबको हम क्विकली देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं. समस्या है, दैट इज़ डाउट. माइंड में कई बार डाउट आ जाते हैं चीज़ों को लेके, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लेके. समस्या इज़ नॉट सर्टेन नॉलेज, नॉर इट इज़ मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज, नॉर इट इज़ इनवैलिड नॉलेज. ना ही तो इनवैलिड नॉलेज है, ना ही नॉलेज है, ना ही रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज है. तो ये क्या है? इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ कॉग्निशन. द कॉग्निशन इज स्प्लिट इन टू एंड डज नॉट अराइव एट एनी डेफिनेट कंक्लूजन. जैसे कांट के उसमें 2 अपोजिंग आइडियाज आ जाते हैं, एंटीनोमीज, कि वर्ल्ड हैज़ अ बिगिनिंग, डज नॉट हैव अ बिगिनिंग. इन दोनों में से क्या सही है, वी कैन नॉट अनसर्टेन, राइट. दोनों में से क्या सर्टेन नॉलेज हम नहीं बता सकते, तो डाउट आ जाता है. इसकी बात करी इनने. एम ऑफ नॉलेज, इनने बोला कि नॉलेज इज नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, देयर हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज. इट डज नॉट मैटर इफ द एम इज ओनली प्रिज्यूम्ड एम और द फुली अंडरस्टूड एम, इससे फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि कई लोग आईएएस की तैयारी शुरू कर देते हैं बाय थिंकिंग कि आईएएस विल लीड टू हैप्पीनेस. नाउ दिस इज अ प्रिज्यूम्ड एम, बट जो भी है प्रिज्यूम्ड एम भी है तो भी क्या, कम से कम तैयारी तो शुरू कर ही देता है बच्चा, को मेहनत करता है, राइट. तो प्रिज्यूम्ड एम भी, कोई भी एम जरूर होना चाहिए. और उसके बाद ही व्यक्ति जो है, वन एक्ट्स ईदर टू अचीव डिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट और टू गेट रिड ऑफ अनडिज़ायरेबल वंस. जैसे कि जो उसकी अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर फैमिली कंडीशन है, उसको रिमूव करने के लिए वो आईएएस बनना चाहता है. दे डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज प्रयोजन. प्रयोजन. देन दृष्टांत, it refers to the examples or illustration that we give to establish an argument. Important होता है. For instance, one can say that there must be fire because one sees smoke, and one can infer the fire and smoke in a kitchen to establish the common ground. ठीक है, तो एग्जाम्पल ज़रा जरूरी होता है. अब यहाँ पे सारी लॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं. कोई ना कोई डॉक्ट्रिन होनी चाहिए आपकी, एक्जियोमेटिक पॉस्टुलेट होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है, विच विल बी द फाउंडेशन फॉर एंटायर थियरी. विदाउट फाउंडेशन देयर कैन नॉट बी एनी थियरी.
तो डॉक्ट्रिन कोई तो होनी चाहिए आपकी. इट इज़ द न्याय सिद्धांत. देर इज दिस निमित्त कारण ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है. न्याय सिद्धांत क्या मानता है कि इस दुनिया का कोई ना कोई एफिशिएंट कॉज है. ये इनका सिद्धांत है. अब इस सिद्धांत के बेसिस पे ही सारी चीज़ें प्रूव करते हैं कि उसको नहीं मानते. सत असत कार्यवाद को, असत कार्यवाद को मानते हैं, सत कार्यवाद को नहीं मानते. सत कार्यवाद होगा तो फिर क्रिएटर का क्या काम. ठीक है. तो कोई ना कोई डॉक्ट्रिन होनी चाहिए. अवयव होने चाहिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्फरेंस. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्फरेंस. जैसे कि 5 अवयव है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन. ठीक है. ये होने चाहिए हमारे पास. इसके बाद तर्क, हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट. तर्क इज नीडेड टू डीक्लटर द थॉट्स. डीक्लटरिंग की ज़रूरत है. द माइंड इज क्लाउडेड बाय इट्स ओन मॉडिफिकेशन. देर आर सो वी नीड टू वॉश आउट द कन्फ्यूजन्स. दिस विल हैपन थ्रू तर्क. ठीक है. तो डीक्लटरिंग की जब हम बात करते हैं आज के ज़माने में, पहले न्याय वैशेषिक ने भी इस पर बात बहुत करी थी, बाकायदा काम किया था इसके ऊपर. So tark is important. It is useful in differentiating between invalid and valid knowledge. Then we have to come to some conclusion. Ascertainment of the truth through legitimate means. But that is discussion. Debate between two parties has to be there. But both are agreed on using the method of reasoning and logic. There has to be honest. The debate has to be honest and free from prejudices. ठीक है. प्रेजुडिसेस नहीं होनी चाहिए. ये बात की इन्होंने. जल्प, दैट इज रैंकलिंग. The two parties try to defeat each other through dishonest means. So you need to know कि dishonest means का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा कोई. There is an involvement of ego instead of true search for knowledge. ठीक है. So जैसे कि for example lawyers, they sometimes apply this method to win the cases in the court. Ego clashes करते हैं चला के to win the cases. Vittand, irrational reasoning. Vittand is you are giving some destructive criticism, not constructive criticism. डिस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म भी देते हैं लोग. कई बार करेक्टर असैसिनेशन करते हैं सामने वाले का. पिन पॉइंटेड क्रिटिक देने की जगह करेक्टर असैसिनेशन करने लग जाते हैं. दैट इज इरेशनल रीजनिंग. ठीक है. अटैक्स द अदर केस विद डिस्ट्रक्टिव इंटेंट. ये भी होता है कई बार. हेतवाभास भी हो जाता है कई बार. irrational argument which is reasoning that appears to be valid but it is really unfounded. Prima facie लगता है कि it is valid because it fulfills the rules of logic. Prima facie it seems that it fulfills the rules of logic, but then you apply the method and you identify that it has lot of inconsistencies, fallacies are there. We will study this in a detail अभी थोड़ी देर में. छल, unfair reply. This also happens. For example, there is a person whose name is Bizarre. Now someone says he is bizarre. Now किसी व्यक्ति का नाम था Bizarre and someone says that he is bizarre. Now the listener जिसने ये बात सुनी, he knowingly चला के misconstructs the meaning of the statement and says he is not bizarre, he is just a common ordinary man. तो इसने सिर्फ नाम बोला था ही इज़ बिजार बिकॉज हिज नेम इज़ बिजार, बट इसने क्या किया, इसने इसको नोइंगली मिसकंस्ट्रक्ट किया. तो कई बार ये छल भी किया जाता है आर्ग्यूमेंट में. ये तो नीड टू नो दिस ऑल्सो. चीटिंग और फूलिंग टू समवन इन एन आर्गूमेंट. प्रिटेंड्स टू अंडरस्टैंड बट डेलिबरेटली मिस इंटरप्रेट्स दिस. जाति, जनरलिटी बेस्ड ऑन फॉल्स एनोलॉजी. फॉल्स एनोलॉजी लगा देते हैं कई बार, but it is a false analogy. There is no universal relationship between the non-material and internal. जैसे for example, this example, it is sound का, is it non-eternal or eternal? A says sound is non-eternal because it is an effect of in certain causes. Thus the spot is produced from clay.
or one can argue that it is eternal by comparing it with sky. But this is a false analogy because there is no universal relationship between non-material and eternal. Non-material और eternal का क्या है भाई रिलेशनशिप? कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो फॉल्स एनालॉजी देते हो, गलत एनालॉजी देते हो कई बार। इसके बाद लास्ट है हमारा ग्राउंड्स फॉर डिफीट। अब लास्ट में डिफीट होनी चाहिए जिसने भी गलत रीजनिंग दी है। तो दैट इज कि happens when a person misinterprets, misunderstands, understand his own or his opponent's premises and becomes helpless and eventually accepts the defeat. This is so ये 16 बातें करी है उन्होंने, 16 पदार्थ हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हेत्वाभास, और हमारे लिए अवयव इंपॉर्टेंट है, और प्रमेय और प्रमाण ये इंपॉर्टेंट है। इसी पे हम बात करेंगे आगे अब। बट फॉर एक बार रिवीजन के लिए वी हैव डन एवरीथिंग। नाउ सी प्रमाण। प्रमाण क्या है? सोर्सेस ऑफ अटेनिंग नॉलेज। प्रमा इज वैलिड कॉग्निशन, प्रमाण इज सोर्स ऑफ दैट कॉग्निशन। तो व्हाट आर द सोर्स ऑफ कॉग्निशन? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। देखो ये न्याय फिलॉसफी के हैं, वैशेषिक नहीं मानते, ध्यान रखना। सिर्फ न्याय मानती है 4, वैशेषिक 2 ही मानते हैं। एंड देर आर अप्रमा। अप्रमा मीन्स इनवैलिड कॉग्निशन भी हो जाता है कई बार, दैट इज डाउट, फॉल्टी कॉग्निशन एंड हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट्स, दीज आर इनवैलिड। फर्स्ट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष को उन लोगों ने डिवाइड किया है इनटू लौकिक, दैट इज ऑर्डिनरी परसेप्शन विच इज अटेन्ड थ्रू दी सेंसेज ऑफ 6 टाइप्स। ठीक है, विजुअल वगैरह ये सब हमारे 5 तो एक्सटर्नल सेंस और 1 इंटरनल सेंस। दूसरा है अलौकिक, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। इसमें सामान्य लक्षण, जिसकी हमने बात करी थी, हम चारवाक की बात कर रहे थे कि चारवाक को जब रेस्पॉन्स दिया न्याय ने, उन्होंने बोला कि द रिलेशन बिटवीन स्मोकीनेस एंड फायरीनेस इज नोन थ्रू सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, that is generality between the particular objects. Gyan lakshan pratyaksh, when one sense organ can also perceive qualities not attributable to it, as when seeing a chili one knows that it would be bitter or hot. अब देखो सीइंग जो है वो विजुअल सेंस का है, और ये जो है हमारा ये टेस्ट वाला है पार्ट, गस्टेटरी सेंस का है। तो ये विजुअल सेंस से ही आपने इसको पता लगा लिया, दैट इज ज्ञान लक्षण। कोई ना कोई पुराना ज्ञान था उसकी वजह से। देन योगज इज व्हेन सर्टेन ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम पावर ऑफ योग कैन परसीव पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड मे हैव सुपर नेचुरल एबिलिटीज। इट इज कंपेरेबल टू केवल्य ज्ञान, ठीक है, बोधि, प्रज्ञा, इन सबसे आप कंपेयर कर सकते हैं इसको। ओके, इसके बाद है हाँ, अब लौकिक में भी उन लोगों ने कैसे किया था? पहला तो एक्सटर्नल वाला 5 सेंस इंटरनल किया, और फिर लौकिक में ऑर्डिनरी परसेप्शन को भी बताया कि ऑर्डिनरी परसेप्शन एक तो इंडिटर्मिनेट होता है और एक डिटर्मिनेट होता है। इंडिटर्मिनेट इज निर्विकल्प, डिटर्मिनेट इज सविकल्प। They say that for the first instance, the first glance at the table shows as just its mere existence, the general appearance. A second look shows the details. तो डिटेल्ड कॉग्निशन जो है वो सेकंड होता है। जैसे कांट बोलता है ए परसेप्शन की, ए परसेप्शन जो है वो डिटेल्ड कॉग्निशन होता है। इट इज़ अ कॉन्शियस परसेप्शन। डिटेल्ड होता है, कॉन्शियस होता है। कांट फिर ये बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय इंडिटर्मिनेशन, इंडिटर्मिनेट परसेप्शन। कांट भी कहता है कि नॉलेज ऑलवेज बिगिंस विद सेंसेस एंड देन इट प्रोसीड्स टू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अलौकिक, समान लक्षण प्रत्यक्ष, ऑल मैन आर मॉर्टल, परसेप्शन बेस्ड ऑन एसोसिएशन, that is your Gyan Lakshan, and Yogaj is
also of two type. Yukta yogin, for them there is spontaneous intuition. For Yujni yogins, which who are still on the path, but it is yogas. It is compared to Kaivalya Gyan. Then we have Anuman, which is which is the most important one. Anuman जो है सबसे ज़्यादा important है. Now see how Anuman has been defined. Use this sutra. You need to use this sutra because Anuman is the most obvious question. It is the most obvious question asked in UPSC. और ऑब्वियस क्वेश्चन पे हमको ऑब्वियस आंसर नहीं लिखने हैं, वहाँ पे हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिखने हैं. We don't have to write obvious answer to obvious questions. We have to write extraordinary answer to obvious questions. So what will you say? Anuman is paramarsh janyam jnanam anumiti. Anumiti is valid cognition, and the source of that valid cognition is Anuman. तो अनुमिति क्या है? अनुमिति इज परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति. और परामर्श क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श. सबसे पहली बात तो ये अनुमिति क्या है? परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति. और परामर्श क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श. नाउ सी लेट्स सी की पक्ष धर्मता क्या है और आपका परामर्श क्या है. सी दिस एग्जाम्पल. ये हमारा जो एग्जाम्पल है क्लासिकल एग्जाम्पल. माउंटेन के पीछे हमने स्मोक देखा. स्मोक को हमने बोला कि स्मोक के बेसिस पे इन्फर किया दैट इज़ फायर ऑन द हिल. फायर दिखा नहीं है, स्मोक दिखा है. माउंटेन दिख रहा है, स्मोक दिख रही है और इन्फर कर दिया फायर को. तो माउंटेन को ये लोग बोलते हैं इट इज़ द मिडल इट इज़ द माइनर टर्म. इट इज़ कॉल्ड पक्ष. ये वो पक्ष है. और स्मोक को कहते हैं मिडिल टर्म, दैट इज़ हेतु और लिंग. मार्क है ये, इस मार्क के थ्रू हम लगा रहे हैं साध्य. ठीक है. स्मोक जो है वो लिंग है या फिर हेतु भी बोलते हैं इसको. और इससे हम जा रहे हैं फायर के ऊपर, दैट इज साध्य. तो ये मिडिल, ये माइनर और ये मेजर. नाउ सी पक्ष धर्मता जन्नम ज्ञानम अनुमिति. पक्ष धर्मता क्या है? प्रेजेंस ऑफ मिडिल टर्म इन माइनर टर्म. मिडिल टर्म क्या है? आपकी स्मोक इन माउंटेन. भाई पहली बात स्मोक तो होना चाहिए माउंटेन में, कहीं यही ना हो और आप बोल रहे हो कि स्मोक है माउंटेन इसलिए फायर लगा रहे हो. पहले स्मोक भी तो हो माउंटेन के अंदर. तो अगर ये स्मोक माउंटेन में प्रेजेंट है तो यू कैन से प्रेजेंस ऑफ मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म इज पक्ष धर्मता. सो पक्ष धर्मता सॉरी व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है. आप परामर्श पाते हैं. परामर्श क्या है? नॉलेज ऑफ पक्ष धर्मता एज क्वालिफाइड बाय व्याप्ति. नॉलेज ऑफ पक्ष धर्मता एज क्वालिफाइड बाय व्याप्ति. तो पक्ष धर्मता है ये, इसकी प्रेजेंस इसके अंदर इस पक्ष धर्मता. अब इसके इन दोनों की इसके उसके रिलेशन की वजह से हमने इसको इन्फर कर लिया. हमने क्या कर दिया? इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाया. दिस रिलेशन इज व्याप्ति. ठीक है. हमने माउंटेन में स्मोक देखा. दिस इज जब इसके अंदर ये प्रेजेंट है दैट इज पक्ष धर्मता. अब इसको देखा तो इसके बेसिस पे हमने ये कर दिया हमने इन्फरेंस, दैट इज व्याप्ति. तो अब क्या बोल रहा है? नॉलेज ऑफ पक्ष धर्मता एज क्वालिफाइड बाय व्याप्ति इज परामर्श. और अनुमान क्या है? परामर्श जन्नम ज्ञानम अनुमिति. परामर्श से जो ज्ञान ओरिजिन हुआ है वो है अनुमिति. तो परामर्श क्या है? नॉलेज ऑफ पक्ष धर्मता एज क्वालिफाइड बाय व्याप्ति. पक्ष धर्मता क्या है? प्रेजेंस ऑफ मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म. ठीक है. तो ये हमको डेफिनेटली मेंशन करना है. ऐसे गलती नहीं करनी कि हम नॉर्मली लिख के आ गए. वी हैव टू मेंशन दीज.
और बता के भी आना है कि पक्षी धर्मता क्या है और परामर्श क्या है. So let's see. It is Anuman is the detailed process of knowing something by means of contact, not by means of contact between the sense and the object of the world, not by observation, but rather through medium of sign or link, that is hetu, that is invariably related to it. हेतु जो है वो invariably related है. अनुमान the cognition or knowledge that follows from some other cognition. अनु plus मान after knowledge, that is अनुमान. सबसे पहले तो अनुमान में ये बताना है कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, और ये एग्जाम्पल अपन को लिख के आना है, तब हमको मार्क्स मिलेंगे बहुत अच्छे. टू टाइप्स ऑफ इन्फरेंस, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान. स्वार्थ अनुमान इज इन्फरेंस फॉर वन सेल्फ, परार्थ अनुमान इज इन्फरेंस फॉर अदर्स. देन पूर्वत अनुमान, inferring an unperceived effect from perceived cause. शेषवत अनुमान, inferring an unperceived cause from perceived effect. ठीक है. इसमें जैसे कि आपने जो ग्राउंड था, इट वॉज वेट, ग्राउंड वॉज वेट एंड देयर वॉज नो सोर्स ऑफ वाटर देयर, of water nearby, so you inferred rain. फिर आपने रेन इन्फर कर लिया है ना. सो आपने इफेक्ट से कॉज को इन्फर कर लिया, शेषवत. और सामान्य तो दृष्टा, व्हेन इन्फरेंस इज नॉट बेस्ड ऑन कॉजेशन बट ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस. यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस की बेस पे जो आप करते हो, दैट इज सामान्य तो दृष्टा. सबसे पहले तो अनुमान के अंदर हमको ये बातें लिखनी है, उसके बाद अगर उसने पूछा है कि क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में बता देंगे इसका. देन द मेथड. मेथड इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्शन एंड डिडक्शन फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल एंड देन जनरल टू पर्टिकुलर. इंडक्शन में क्या होता है, हम पर्टिकुलर केसेस से, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से जनरल हाइपोथेसिस बनाते हैं, और डिडक्शन में हम जनरल जो डिडक्शन बनाई है हमने, उससे हम पर्टिकुलर को प्रूव करते हैं. ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल. दिस इज डिडक्शन, दिस इज डिडक्शन. ठीक है. सो इट हैज़ 5 स्टेप्स. पहला है सबसे बड़ा प्रतिज्ञा, which is required to be proved. There is fire on the hill. Hetu, reason why there is fire on the hill, because there is smoke on the hill. Then you have to give example, wherever there is smoke there is fire. Example you will give of kitchen. There is smoke on the hill. Upnay, you are reaffirming it. It is very important to reaffirm after giving example. After reaffirmation you give the conclusion, therefore there is fire on the hill. That is निगमन. So प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन. These are the पंच अवयव नय, पंच अवयव, 5 members of syllogistic reasoning, है ना, इन न्याय फिलोसफी. ध्यान रखोगे इस चीज़ को, एग्जाम्पल दे दोगे ये वाला. अनुमान. नाउ सी, इन न्याय टर्मिनोलॉजी फॉर दिस एग्जाम्पल, द हिल वाला एग्जाम्पल दिया हुआ ही है, जहाँ पे पक्ष जो है वो माइनर टर्म है, फायर जो है वो साध्य है, और हेतु जो है वो हमारा इट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्मोक एंड फायर. स्मोक एंड फायर के बीच में रिलेशनशिप इट इज कॉल्ड व्याप्ति. ठीक है. और हेतु, हेतु क्या है हमारी, मिडल, जिसको हमने लिंग बोला. इट शुड हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स. हेतु कौन सी है, स्मोक. इसके अंदर, हेतु के अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. पहली चीज़ ये कि इट मस्ट बी प्रेजेंट इन दी पक्ष. ऐसे नहीं कि पक्ष में है ही नहीं और हम बोल रहे हैं कि देयर इज स्मोक ऑन द हिल, है ही नहीं स्मोक.
कहीं ऊपर जो है वो स्मॉग हो, और स्मॉग या क्लाउडीनेस हो, हमने उसको ही बोल दिया कि ये तो स्मोक है। स्मोक नहीं हो, स्मॉग हो, क्लाउडीनेस हो, ठीक है। तो इट मस्ट बी प्रेजेंट इन दी पक्षा। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस, सारे पॉजिटिव इंस्टेंस के अंदर इसको प्रेजेंट होना चाहिए कि जहाँ पे स्मोक मतलब है, आपका हिल है, वहाँ पे आपने पहले भी स्मोक देखी है। इट मस्ट बी एब्सेंस इन ऑल नेगेटिव इंस्टेंसेस। इट मस्ट नॉट बी कंपैटिबल विद द माइनर। हाँ, इट मस्ट नॉट बी इनकम्पैटिबल विद द माइनर और पक्ष। ऐसा नहीं है कि कभी माउंटेन के पीछे स्मोक हो ही नहीं सकती, माउंटेन के ऊपर स्मोक हो ही नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है। स्मोक हो सकती है वहाँ पे, तो इसको हम सही हेतु मानेंगे। बाकी कई बार गलत हेतु भी दे देते हैं लोग। तो ये बता रहे हैं ये कि आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो हेतु हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मार्क या लिंक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू अराइव एट अ साध्य, ये करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी करेक्टनेस। क्योंकि अगर यही करेक्ट नहीं है तो फिर ये तो हम गलत होगा ही हमारा। अगर हमारा मिडिल टर्म ही गलत है तो मेजर तो गलत होना ही है, जो हमारा कंक्लूजन वो गलत हो जाएगा। ऑल अदर कॉन्ट्रडिक्शन बाय मीन्स ऑफ नॉलेज शुड बी एबसेंट। ठीक है, तो ये 5 आपको लिख देने हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड हेतु। वैलिड हेतु के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो इनको, वेरी इंपॉर्टेंट है। फैलेसीज, हेत्वाभास, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली फैलेसी होती है असिद्ध, अनप्रूव्ड हेतु दैट रिजल्ट्स इन फैलेसी। अनप्रूव्ड हेतु है जिस रिजल्ट्स इन फैलेसी, जैसे पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता होना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ मिडिल इन द माइनर। जैसे हमने बात करी, हो सकता है कि ऊपर क्लाउडीनेस हो या स्मॉग हो, एंड वी सेड कि देर इज स्मोक ऑन द हिल। नो, हो सकता है नहीं हो। तो असिद्ध होगा सबसे पहला। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। आश्रय सिद्ध, वेयर पक्ष इटसेल्फ इज अनरियल। स्वरूप सिद्ध, हेतु कैन नॉट एग्जिस्ट इन पक्षा एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, साउंड इज अ क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। अब विजिबिलिटी और विजिबिलिटी और साउंड, इनके अंदर कोई रिलेशन ही नहीं है। विजिबिलिटी हो गई हेतु और साउंड हो गया पक्ष। विजिबिलिटी, साउंड विजिबल होता ही नहीं। व्याप्तव सिद्ध, कंडीशनल हेतु भी होती है कई बार कि वेर एवर देर इज फायर देर इज स्मोक। यहाँ पे कंडीशन होगी वेट फ्यूल की, कि भाई वेट फ्यूल होता है तभी स्मोक होती है, वरना स्मोक होती ही नहीं। तो ये भी जानना जरूरी है कि कोई व्याप्तव सिद्ध तो नहीं, कोई स्वरूप सिद्ध तो नहीं, कोई आश्रय सिद्ध तो नहीं। आश्रय असिद्ध। उसके बाद है सभ्य विचार, इरेगुलरिटी ऑफ हेतु। पहला है असिद्ध, दैट इज अनप्रूव्ड हेतु। ये बस एक टर्म याद रखना, अनप्रूव्ड हेतु, इतना ही। अगर पूरा याद नहीं होता तो सिर्फ इतना याद रखना, अनप्रूव्ड हेतु है, उससे फैलेसी हो जाती है। अनप्रूव्ड हेतु से फैलेसी हो जाती है। यहाँ पे क्या है, इरेगुलर हेतु से फैलेसी हो जाती है, कि कभी कभार होती है, रेगुलरिटी में नहीं होती। साधारण, व्हेन हेतु इज टू वाइड। असाधारण, व्हेन हेतु इज टू नैरो। बस जस्ट इतना ही मेंशन करना। अनूप समहरी, द हेतु इज नॉन एक्सक्लूसिव। जस्ट मेंशन दिस। आई नो इट इज ओवरवेलमिंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। तो सिर्फ इतना इतना याद रखो, एक एक टर्म, ताकि अगर कंपलसरी क्वेश्चन आता है तो हम लिख सकते हैं, और अगर कंपलसरी नहीं आता और हम अटेम्प्ट भी कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो हम लिख दिए, तो एग्जामिनर को लग जाए कि ओके यू नो द कॉन्सेप्ट। अनप्रूव्ड हेतु याद रख लिया, लीड्स टू फैलेसी। इरेगुलर हेतु याद रख लिया, लीड्स टू फैलेसी। साधारण मतलब टू वाइड, असाधारण मतलब टू नैरो, अनुपसमरी मतलब नॉन एक्सक्लूसिव। इतना बस। सत्य प्रतिपक्ष, कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अनदर हेतु, प्रतिपक्ष है ना, अनदर हेतु ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। एंड बोथ हैव इक्वल फोर्स, इतना याद रखो। यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अनदर हेतु। बाधित हेतु, व्हेन अनदर प्रूफ definitely contradicts and disproves the middle hetum, like fire is cold because it is substance. When another proof by perception contradicts and disproves the middle, तो परसेप्शन कॉन्ट्रडिक्ट्स दी मिडल। कोई दूसरा प्रूफ है अनुमान की जगह, दूसरा प्रूफ कौन सा है यहाँ पे, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष ने उस चीज़ को नेगेट कर दिया, सो वो क्या हो गया, बाधित। उसने बाधित कर दिया उसके स्कोप को।
प्रत्यक्ष ने बाधित कर दिया अनुमान को, तो इनवैलिड हेतु हो जाएगा, हेतुआभास हो जाएगा। विरुद्ध, इंस्टेड ऑफ प्रूविंग समथिंग इट प्रूव्स द अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। नाउ प्रोड्यूस्ड मीन्स नॉन इटर्नल, because it was produced means it was created. So what is created also dies, which has origin also has decay. So produced, instead of proving eternality, it proves the non eternality प्रूव कर दी इसने। तो ध्यान रखेंगे, असिद्ध हेतु, सभ्य विचार, सत्य प्रतिपक्ष, बाधित और विरुद्ध। असिद्ध हेतु के अंदर अनप्रूव्ड हेतु, इसमें आश्रय सिद्ध के अंदर पक्ष जो है दैट इज अनरियल, पक्ष ही अनरियल हो जाए, आश्रय जो है उसका आश्रय वही गलत हो गया, वही असिद्ध है, स्वरूप ही असिद्ध है। हेतु कैन नॉट बी प्रेजेंट इन पक्ष एट ऑल। व्याप्तव सिद्ध है, कंडीशनल हेतु है, जैसे कि वेट फ्यूल। सभ्य विचार इरेगुलर हेतु है। साधारण टू वाइड, असाधारण टू नैरो, अनुपसमरी नॉन एक्सक्लूसिव। सत्य प्रतिपक्ष कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अनदर हेतु। बाधित कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज। विरुद्ध इंस्टेड ऑफ प्रूविंग डिसप्रूव्स। ये 5 हम हेतुआभास याद रखेंगे, इनको लिख के भी आएंगे जब भी मौका मिला। फिर आता है उपमान। उपमान को डिफाइन किया गया, देखो जैसे हमने बताया था ना, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। याद किया था उन्हें, परामर्श से जो ज्ञान जनरेट होता है दैट इज अनुमान। अनुमिति जो कॉग्निशन है और सोर्स है अनुमान। वैसे ही इसको डिफाइन किया गया है, उपमिति कारणम उपमानम। उपमिति is the valid cognition and the cause of that valid cognition is upman. Cause of that valid cognition is upman. And what is उपमिति? क्या बोला हमने? वैलिड कॉग्निशन उपमिति है और उसका कॉज है उपमान। तो उपमिति क्या है? संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति। संज्ञा संगी संबंध रिलेशन, ज्ञानम रिलेशन की नॉलेज इज उपमिति। संज्ञा और संगी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड ऑब्जेक्ट। संज्ञा क्या है? वर्ड। संगी क्या है? ऑब्जेक्ट। सो रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड ऑब्जेक्ट, द नॉलेज ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड ऑब्जेक्ट इज उपमिति। उपमिति इज वैलिड कॉग्निशन एंड द मीन्स ऑफ दैट वैलिड कॉग्निशन इज उपमान। ठीक है, बहुत ईजी ही चीज़ है, लिख के आओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये ऑब्वियस क्वेश्चन है। ऑब्वियस क्वेश्चन पे ऑब्वियस राइटिंग नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज होती है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। कोई वर्ड बताया हमको और वर्ड का ऑब्जेक्ट बताया, नील गाय, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है कोई काऊ, उसके बेस की रिलेशन के बीच में हमने पता लग गया कि कोई ना कोई काऊ होगी जो नील गाय जो है वो काऊ जैसी दिखती होगी। इसके बाद आता है शब्द। टेस्टिमनी को भी उन लोगों ने बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया। शब्द जो है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड्स और सेंटेंस बट नॉट ऑल वर्बल नॉलेज इज शब्द। तो फिर शब्द क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज स्टेटमेंट ऑफ एन एप्ट पर्सन। सारी वर्बल नॉलेज नहीं होगी नॉलेज शब्द। शब्द क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ अप्त पुरुष, वैलिड पर्सन हु स्पीक्स एंड एक्ट्स द वे ही थिंक्स, a person whose mind, action and speech, mansa, vacha, karma, mind, speech and action are in perfect harmony and therefore accepted as an authority. So they have established a criteria, mind, action और speech जो है वो perfect harmony में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति की, उसी की हमको उसको बोलेंगे अप्त पुरुष। तो 2 तरीके के शब्द होते हैं, वैदिक और लौकिक। द वर्ड्स ऑफ वेदास, द वर्ड्स ऑफ ह्यूमन, ट्रस्टवर्दी ह्यूमंस। क्लासिफिकेशन किया है शब्दों का। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, परसीवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर हम ऑर्डिनरी पर्सन की, सेंट्स की, इनकी मान सकते हैं।
जब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज कंसिडरिंग सुपर सेंसिबल, जिनको सेंसेस के थ्रू नहीं जान सकते, द ट्रस्ट वर्दी असर्शन ऑफ पीपल सेंट एक्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशनिस्ट ऑन वाइटामिन, जिसको हम डायरेक्टली सेंसेस से नहीं जान सकते। तो दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बेस पे। फिर आता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोर्स। टेस्टिमनी के ऊपर अपना एक क्वेश्चन आ सकता है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, 15 मार्क का, ध्यान रखना। अब बहुत इलेबोरेट है। सबसे पहली बात तो यह है कि अब तो पुरुष होना चाहिए जिसका मनसा वाचा कर्मा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। फिर टाइप में वैदिक लौकिक। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बेसिस पे परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉन परसेप्टिबल होते हैं, सुपर सेंसिबल होते हैं। फिर नेचर ऑफ सोर्स के बेसिस पे किया उन लोगों ने। एक तो स्क्रिप्चरल है जो हमको वेदास वगैरह से मिलती है, और एक सेकुलर है इसमें टेस्टिमनी ऑफ फैलिएबल ह्यूमन बींग्स है, मे बी इधर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू है या फॉल्स है, अब देखो ध्यान रखो क्या बोल रहा है। सेकुलर के अंदर टेस्टिमनी ऑफ फैलिबल एंड मे बी इधर ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए क्राइटेरिया देगा। अब क्राइटेरिया क्या देगा कि व्हाट इज अ वर्ड, व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इट रेजेस अ क्वेश्चन। इट सेज द एसेंशियल नेचर ऑफ एनी वर्ड लाइज इन द मीनिंग एंड देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक रूल। मीनिंग और रूल बेस्ड, बिल्कुल विटगेनस्टीन की ऐसे बात कर रही है, लेटर विटगेनस्टीन के जैसे, कि कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, और मीनिंग जो है वो स्पेसिफिक रूल्स के बेस पे होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए। लैंग्वेज गेम्स, गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं। गवर्निंग द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एज विदाउट सच रूल्स वर्ड्स कैन रीऑर्डर टू कन्वे अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज व्हाट इंटेंडेड। लैंग्वेज गेम्स पता होनी चाहिए हमको कि उस पर्टिकुलर गेम के अंदर उसका मीनिंग क्या है। All words are significant symbols and have the capacity to designate their respective object. This capacity is called Shakti, the potency. This potency is by the will of God. There are four conditions. अब ये चार condition दे दी उनने to identify the proper functioning of word and sentences. सबसे पहला आकांक्षा, that is expectancy. When we utter the word bring, one must expect jar या book. मतलब ब्रिंग शब्द बोलते ही दिमाग में आ जाना चाहिए जी कि भाई क्या लेके आना है, जार लेके आना है कि बुक लेके आनी है, तब तो सही है। योग्यता, दैट इज फिटनेस, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्ड्स। मॉइस्चन विथ फायर, ना मॉइस्चन विथ फायर, फायर तो ड्राई कर देगी चीज़ों को, जला, मॉइस्चर खत्म कर देगी। योग्यता नहीं है, नो फिटनेस। सन्निधि, दैट इज प्रॉक्सिमिटी, वर्ड्स मस्ट बी यूज विद इन अप्रोप्रिएट लिमिट्स ऑफ टाइम। टाइम एंड स्पेस के अप्रोप्रिएट लिमिट्स होनी चाहिए उन पे। इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी, इफ़ यू स्पीक अ वर्ड टुडे एंड अनदर टुमारो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन फेल्स। ऐसा सोचो कि मैंने आज बोला ब्रिंग, आज बोला ब्रिंग, और कल बोला ए, और तीसरे दिन बोला काऊ, तो ऑल्दो देयर इज अ स्टेटमेंट ब्रिंग अ काऊ, बट प्रॉक्सिमिटी नहीं है, टेम्पोरल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, स्पेशल प्रॉक्सिमिटी नहीं है ना, तो प्रॉक्सिमिटी होना ज़रूरी है। तात्पर्य, दैट इज इंटेंशन, मीनिंग व्हाट वन इंटेंट्स टू कन्वे डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। Confusion comes in scriptures because no one does understand the original intention. For example, कोई बोले bring sandhav, bring sandhav. This was the example they gave. Bring sandhav. Now, when I am eating food, when I am having my meal, if I say bring sandhav, then one must not bring horse, because horse का मतलब भी sandhav होता है. Horse is equal to sandhav, and your salt is equal to sandhav. So there has to be an intention. Intention समझना पड़ना जरूरी है बहुत, किस इंटेंट में उसने इस्तेमाल किया शब्द का। वर्ड्स कैन हैव डिफरेंट मीनिंग और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल लेटर विटगेनस्टीन की ऐसे बात है। इंटेंशन समझना पड़ेगा आपको। अगर मैंने मील खाते वक्त, मील लेते वक्त संदर्भ मंगाया तो दैट इज सॉल्ट, फिर मैं घोड़े नहीं मंगा रहा आपसे। ठीक है, तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। नाउ न्याय, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है इनकी, आपको पता है। थ्योरी ऑफ कॉजेशन में सेंट्रल क्वेश्चन क्या है, डज द इफेक्ट already exist in the cause। ठीक है, इसके बेस पे दो आंसर मिलते हैं हमको। पहला आंसर है यस,
द इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कॉज, ये हो गया सत्कार्यवाद। और सेकंड आंसर होता है नो, द इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट in the cause, rather the effect is a new beginning, न्यू बिगिनिंग है, विच इज आरंभ, आरंभवाद। ठीक है, एपिजेनेसिस न्यू बिगिनिंग है, आरंभवाद। तो न्याय फिलॉसफी किसमें बिलीव करती है? असत, असत कार्यवाद, असत कार्यवाद और आरंभवाद। तो ये उनकी थ्योरी ऑफ पोजिशन है। पहले सबसे पहले जो थ्योरी क्वेश्चन पे आता है तो सेंट्रल क्वेश्चन रेज करो कि सेंट्रल क्वेश्चन विद रिगार्ड टू थ्योरी ऑफ पोजिशन इज दैट डज द इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कॉज? देर आर टू आंसर, येस इट डज एग्जिस्ट सत्कार्यवाद, नो इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज अ सेपरेट एंटिटी, आरंभवाद, असत्कार्यवाद। ये देन थ्योरी ऑफ पोजिशन, अब उसको देखते हैं। कॉज इज डिफाइंड एज अनकंडीशनल एंड इनवेरिएबल एंटीसीडेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जेएस मिल बताता है। अनकंडीशनल इनवेरिएबल एंटीसीडेंट पहले होना चाहिए और अनकंडीशनैलिटी होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उन दोनों के बीच में कि इस ये कंडीशन होगी तभी ऐसा होएगा, कि 1 बजे ही ऐसा काम होता है, 2 बजे नहीं होता। ठीक है, अनकंडीशनैलिटी एंड इनवेरिएबल कॉन्सिक्वेंट ऑफ इफेक्ट। तो कॉज को कैसे डिफाइन किया? देखो, कॉज अनकंडीशनल एंड इनवेरिएबल एंटीसीडेंट और इफेक्ट अनकंडीशनल एंड इनवेरिएबल कॉन्सिक्वेंट। ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है ऑफ कॉज। द सेम कॉज प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एंड द सेम इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉज। कॉज इज नॉट प्रेजेंट इन एनी हिडन फॉर्म व्हाटसोएवर इट्स इन इट्स इफेक्ट। ये एक चीज़ को कॉज करता है, पहले से प्रेजेंट नहीं होता उसके अंदर। 3 कंडीशंस बताई थी उन्होंने विच शुड बी मेट। ये कंडीशन हमको लिखनी ही लिखनी है अपने आंसर्स के अंदर, कि 3 कंडीशन बताई गई थी विच शुड बी मेट टू कॉल इट अ कॉज। पहली, द कॉज मस्ट बी एंटीसीडेंट, जैसे हमने बताया ना कि एंटीसीडेंट होना चाहिए उसको, पूर्ववृत्ति, पूर्व होना चाहिए, एंटीसीडेंट होना चाहिए। देयर हैज टू बी इनवेरिएबिलिटी, नित्य नियत पूर्ववृत्ति, हमेशा। इसको अगर आप देखोगे तो जेएस मिल के से आप वो कर सकते हो कंपैरिजन, अभी हम करते हैं। फिर अनकंडीशनैलिटी, दैट इज अनंत, अनन्य, अनन्य था सिद्ध, अनन्य सा सिद्ध। एक होता है अन्यथा सिद्ध, एक होता है अनन्यथा सिद्ध। अनन्यथा सिद्ध मीन्स अनकंडीशनैलिटी। तो नाउ यू कैन कंपेयर इट विद जेएस मिल जो बोलता है cause must be antecedent, or cause must be invariable and cause must be in unconditional। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो विद जेएस मिल। नाउ हाउ टू recognize 3 kind of there are 3 kind of causes। समवाय कॉज, दैट इज मटेरियल कॉज, जैसे कि क्लॉथ के केस में थ्रेड इज द मटेरियल कॉज। असमवाय कॉज इज द कलर और द थ्रेड विच गिव्स द कलर ऑफ द क्लोथ। ये क्वालिटी वाला, ठीक है, ये मटेरियल कॉज, ये क्वालिटी, और ये निमित्त दैट इज एफिशिएंट कॉज, वीवर ऑफ दी। तो वीवर जो है वो एफिशिएंट कॉज हो गया आपका, निमित्त कारण असमवाय कारण कलर, और समवाय कारण इज द मटेरियल। नाउ न्याय फिलोसफी हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट अन्यथा सिद्ध। जैसे मैंने बताया ना कि कैसा होना चाहिए रिलेशन, पूर्ववृत्ति, पूर्ववृत्ति होना चाहिए, नित्य पूर्ववृत्ति होना चाहिए, और अन्यन्यथा सिद्ध होना चाहिए, अन्यन्यथा सिद्ध। बट कई बार क्या होता है, अन्यथा सिद्ध भी हो जाता है, मतलब एक्सीडेंटल एंटीसीडेंट्स भी आ जाते हैं जिसको हम कॉज मानने लगते हैं। सो एक्सीडेंटल एंटीसीडेंट को कॉज नहीं मानना, ध्यान रखो, कभी भी एक्सीडेंटल इंसिडेंट को एंटीसीडेंट को कॉज नहीं मानेंगे।
तो एक्सीडेंटल एंटीसीडेंट कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं, बताए इन्होंने। पहला होता है कि मेयर एक्सीडेंटल एंटीसीडेंट, जैसे कि कलर ऑफ द पॉटर्स क्लॉथ। रिमोट कॉज इज नॉट कॉज, जैसे कि फादर ऑफ द पॉटर इज नॉट द कॉज ऑफ द पॉट। द को इफेक्ट्स ऑफ कॉज आर नॉट द कॉजली रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि दो पॉट है, वो दोनों पॉट का कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। द इटर्नल सब्सटेंसेस और इटर्नल कंडीशंस आर नॉट अनकंडीशनल एंटीसीडेंट, जैसे कि स्पेस, स्पेस इज नॉट दी, स्पेस में ही घड़ा बन रहा है, कहीं किसी ने की जगह पड़ा है घड़ा, बट वो उसका कॉज नहीं है, उसका एंटीसीडेंट नहीं है। अननेसेसरी थिंग्स भी आ जाती है कई बार, डंकी ऑफ द पॉटर, अब ही इज नॉट दी एंटीसीडेंट, जिसके ऊपर लाद के लेके जा रहा है हम पॉट को, वो एंटीसीडेंट नहीं हो गया। सो देर हैज़ टू बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंटल एंटीसीडेंट्स विच आर अन्यथा सिद्ध, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज अन्यथा सिद्ध। This question has been asked by UPSC, Anyatha Siddh versus Ananyatha Siddh. So you need to remember this. Now they talk about, once have, अब हमारा causation हो गया, now they talk about the karma theory and suffering. जैसे कि भाई suffering का cause क्या है? What are the causes of suffering? जैसे misunderstanding of 12 aspect of reality, मिसअंडरस्टैंडिंग कि जो उनकी रियलिटी और अनरियलिटी है, उनका जो नेचर है, क्वालिटी है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टू सफरिंग। Once these 12 are perceived correctly, they are being perceived but they are currently not perceived correctly. Correct perception बहुत ज़रूरी है, correct perception. परसेप्शन तो अभी भी हो रहा है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट परसेप्शन, करेक्ट परसेप्शन होना ज़रूरी है। when they are perceived correctly, one attains freedom from suffering. ठीक है, करेक्ट परसेप्शन होना ज़रूरी है। क्या है वो, हमने बात करी थी, 12 बात करी थी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मानस, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, लाइफ एंड डेथ, देन फल, दुख और अपवर्ग। इन सब की नॉलेज करेक्ट, इनका सब का करेक्ट परसेप्शन होना ज़रूरी है। विदाउट करेक्ट परसेप्शन सफरिंग विल नॉट बी रिमूव्ड। सो कॉज ऑफ सफरिंग इज incorrect perception of these 12 realities. Now they talk about karma theory. They raise the central question कि why some people are happy and others are unhappy. It can only be due to the karmas, the law. And with regard to the law of karma, they say that it is not of itself and by itself. It has not come into existence of itself and by itself. It is always guided by some intelligent agent. This principle is not intelligent, this is unintelligent principle. It just works, it just works. But the intelligent guidance of this principle is by God. It is only God who provides good fruits to good act and bad fruits to bad acts. Otherwise, the principle in itself does not have that intelligence. So proper consequences God लेके आता है इसके अंदर. Now comes the Nyaya metaphysics. With regard to metaphysics, let me tell you that their metaphysics is atomistic, spiritualistic, theistic, realistic and pluralistic. एटम्स को मानते हैं, स्पिरिट्स को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, रियलिटी को मानते हैं, मैटर की, सोल की, गॉड की, और प्लूरलिस्टिक है क्योंकि इन्हें 12 चीज़ें मानी है। देखो प्लूरलिस्टिक है, प्रमेय कितने हैं? 12। सो देयर मेटाफिजिक्स इज एटोमिस्टिक, स्पिरिचुअलिस्टिक, थीस्टिक, रियलिस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक। नाउ अभी से लेट्स सी द आत्मन वाला पार्ट। In Atman, they say there are infinite number of Atmas. We can know own Atma by mental perception, others by inference. And further, they say that the substratum of this Atma is consciousness, but it is not the essence of Atma. ठीक है?
All philosophies believe that consciousness is a sense of Atma, but they do not believe that consciousness is a sense of Atma. They believe that it is only an accidental property. Each soul has its manas during its empirical life and is separated from it in liberation. And once it is separated in liberation, there is no consciousness. It is distinct from the body, sense, and mind. There is body, there is sense, and the mind. And when the self comes in contact with the mind, there is consciousness. Otherwise, there is no consciousness. In liberation, there is no consciousness. Then Brahman, he is the efficient cause of creation. He is the maintainer and dissoluter. He is the generator, operator, and destroyer. God. He is the generator, operator, and destroyer. He creates all substances from eternal atoms of space, time, mind, and consciousness. He is the creator. He is not the substance in itself. बाकी सबकी अपनी presence है. That's why pluralistic. He causes these atoms to hold together and continue their existence in a particular order to maintain the physical universe. He is like the demigod, demiurge. ये वो डेमियर्च है प्लेटो का, है ना, जो फॉर्म्स अलग है और डेमियर्च अलग है. आर्ग्यूमेंट्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. कार्यत, from the effect we can infer the cause. From ayojanat, from the combination of things we can infer. Dhrite, the supporter. पादत, that is word meaning, जैसे हमने भी देखा था. प्रत्यत, from faith. श्रुते, from scripture. वाक्यात, from percepts. संख्या विशिष्ट, from the speciality of numbers. and अदृष्ट, from the unforeseen. एक एक को देखते हैं. कार्यत मीन्स an effect is produced by effect by a cause. Similarly, the universe must also have a cause. Cause and effect relationship. असमवाय समवाय निमित्त कारण. God is the निमित्त कारण. अयोजनात्, combinations. Atoms are inactive, properties are unphysical. There must be a cause. God who creates the world by his will causing the atoms to join. ठीक है, तो योजना कौन बनाता है? God is the final organizer. Dhrite, that is from the support. Just as material things falls off without a support, similarly God is the support and bearer of the world, without which the world would not have remained integrated. So he is the supporter of this integration. Then fourth is padat. He says the word has meaning and signify an object. Word has meaning and they signify an object. Sangya, sangi. The power of words to identify the signify with objects come from the God. So पादत ही हो गया. वर्ड है, उसका मीनिंग है, वो सब सिग्निफाई करता है ऑब्जेक्ट को, और ये मीनिंग पावर कहाँ से आती है? गॉड से. प्रत्येत, his existence is proved from his being the author of Vedas. He revealed to sages over different period of time. Shrute, creator, cause and destroyer of the world. Shrute says that there is a creator, cause and destroyer of the world. Vakyat, the sentence of Vedas were produced by a person because they have the nature of sentences, just as the sentences of beings like ourselves. That person must have been God. So Vedas must have been produced by a person because it is nature of sentences. Sentences की basis में कि sentences का कोई constructor होना चाहिए. संख्या विशिष्ट, from the speciality of number. The size of dyad molecule depends on the number of atoms that go to constitute it. This requisite number of atoms that go from a particular compound could not have been originally the object of perception to any human being. Its contemplator must be God. भाई एटम्स किसी को दिखे तो नहीं होंगे, गॉड को ही दिखे होंगे. कितने एटम पकड़ के ये चीज़ बनानी है, कितने एटम पकड़ के ये चीज़ बना रही है. अदृष्टार्थ, it is seen that some people in the world are happy, some are misery. What is the case? The Nayikas explain this by concept of karma and reincarnation. The fruit of individual action does not always lie within the reach of individual of the agent. That ought to be therefore a dispenser of the fruit of action, and this supreme dispenser is God. ठीक है, तो वो जो लॉ ऑफ कर्मा है वो अनइंटेलिजेंट प्रिंसिपल है. उस अनइंटेलिजेंट प्रिंसिपल को कोई कॉन्शियस गाइडेंस चाहिए होती है, और वो कॉन्शियस गाइडेंस देने वाला है गॉड. ये है इसका मतलब. ठीक. फिर न्याय फिलोसफी ने मोनोथिज्म की तरफ लेके गए. दे सेड दैट कि
It is more logical to assume only one God, eternal and omniscient God, than to accept many. They say that polytheists would have to give elaborate proof for existence and origin of several celestial spirits, none of which would be logical. And with regard to liberation, they say to attain this one needs to acquire true knowledge. हमने बताया ना कि ट्रू नॉलेज की जरूरत है उन 12 रियलिटीज़ की। इस ट्रू और ये ट्रू नॉलेज के लिए इतना इलेबोरेट नॉलेज सिस्टम बनाया है इन्होंने, ताकि करेक्ट परसेप्शन हो रियलिटीज़ का, ताकि सफरिंग रिमूव हो। एक्सपीरियंस का, तत्व ज्ञान की ज़रूरत है। तत्व ज्ञान 3 पाथ की बात करिए, श्रवण मनन निध्यासन। पहले सिर्फ सुन लिया, जैसे परियत्ति, बुद्ध के ज्ञान की हमने बात करी थी कि परियत्ति कर लिया आपने, फिर पटिपत्ति कर ली, फिर पटिवेधन। तो श्रवण मनन निधिध्यासन यू कैन कंपेयर विद बुद्धिज्म। निधिध्यासन मीन्स कंटेम्पलेटिंग ऑन द सोल, कंफर्मिंग योर नॉलेज एंड प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस में लेके आना उस चीज़ को। पटिवेधन, यू हैव बिकम वन विद नॉलेज। देन सिग्निफिकेंस इज देयर कि भाई उन्होंने एल्यूसिडेशन और प्रमाण किया है बहुत ज़्यादा। लॉजिक, इलेबोरेट लॉजिक था। देयर लॉजिक इज डिफरेंट फ्रॉम अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अरिस्टोटेलियन लॉजिक फॉर द सेक ऑफ इट है, और यहाँ पे नॉलेज जो है इट इज़ फॉर रिलीज फ्रॉम सफरिंग एंड टू आइडेंटिफाई दिस वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एंड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम दिस मेयर फॉल्स ओपिनियन। ये उन्होंने इस पर बहुत इलेबोरेट काम किया। ठीक है, तो न्याय फिलोसफी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई इसके अंदर, कि हमको एक तो अन्यथा सिद्ध ये सब हैं, कॉजेशन के बारे में पता होना चाहिए, अनुमान के अंदर स्पेसिफिक नाम बताने हैं हमको, स्पेसिफिक सूत्रास का इस्तेमाल करना है, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। परामर्श है क्या है और पक्ष धर्मता क्या है, एक्सप्लेन दिस। फिर मैंने बताया था आपको, हाँ, उपमिति कारणम उपमानम संज्ञा संगीत संबंध ज्ञानम उपमिति। तो इस तरह के हमको सूत्र मेंशन करने हैं ऑब्वियस क्वेश्चंस के अंदर। ऑब्वियस क्वेश्चन में ऑब्वियस आंसर्स नहीं आने चाहिए। आई हैव बीन रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, so please implement this when you are writing the test. So okay, all the best to you.